Good morning, student. Welcome to the class of ancient history. And today we are going to discuss about post-Mauryan period. In last class, we discussed about the Mauryan Empire, which was the greatest empire in ancient history of India. Now we saw the decline of the Mauryan Empire, and after Mauryan Empire, there was a period called post-Mauryan period. It was from 185 BCE to 300 CE. So in this period, there were various kingdoms that were formed and destroyed, and then again new kingdoms formed, such as Shunga, Kanvas, Satavahana dynasty, Indo-Greeks, Shakas, Parthian and Kushans, Connection, uh, Sangam literature. These are from the South India, like Chera, Chola, Pandya, these kingdoms. So we are going to show this period, post-Mauryan period, and let's discuss about. So first is post-Mauryan period overview and context. सो पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करें, ये काफ़ी ही डायनामिक फेजेस से गुजरा कि इस टाइम पे कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो कि पूरे इंडिया को, जैसे मौर्यन एम्पायर में एक पूरा एक बड़ा एम्पायर था जिसने पूरे इंडियन सब कंटिनेंट को कंट्रोल में रखा था। इस टाइम पे छोटे छोटे एम्पायर्स बनते थे, फिर बिगड़ते थे, फिर नए बनते थे, फिर और बिगड़ते थे। तो कभी ग्रीक्स ने आके राज किया, कभी इंडियंस के ही किंगडम बने। तो ये सारी चीज़ें इस पीरियड पे चलती रही थी। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, इंडिया विटनेस पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बट ऑल्सो रिमार्केबल cultural synthesis, flourishing trade, and artistic innovation. The period saw the entry of foreign rulers, Indo-Greek, Shakas, Parthian, Kushans, into the Indian subcontinent, the rise of indigenous dynasties, Sunga, Kanva, Satavahana, and the golden age of Sangam literature in South India. Now first we saw the causes of Mauryan decline, कि इतना बड़ा जो एम्पायर था वो किस तरह से ख़त्म हो गया, क्या क्या चीज़ें उसमें थी। पहली बात तो जब अशोका था तो अशोका एक पावरफुल रूलर था। उसके बाद जो रूलर्स आए वो काफ़ी वीक रूलर्स थे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। दूसरी बात कि अफ़गानिस्तान से लेके साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सारा पूरा इतना बड़ा, मतलब इसका एरिया हो गया था एम्पायर का कि इसको मैनेज करना ही काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका था। दूसरा बात, इकोनॉमिक स्ट्रेन भी थे क्योंकि इतने बड़े एम्पायर को मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी, ऑफिसर्स और ये सारी चीज़ें चाहिए। इस वजह से क्या था, जो स्टेट के फाइनेंसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में, इसको मेंटेन करने में ही खर्च हो जाते थे। फिर उसके बाद जैसे ही वीक रूलर्स आए, कि अशोका के बाद जैसे ही वीक रूलर्स आए, तो जो रीजनल किंगडम्स थे, रीजनल किंग्स थे या गवर्नर्स थे, उन्होंने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि उन्होंने अपने किंगडम्स फॉर्म करने स्टार्ट कर दिए। सो वही देखते हैं, वीक सक्सेसर आफ्टर अशोका, successor like Dasharatha, Samrati, Salisuka, Devarman, Brihadrata were unable to maintain imperial unity. Then Ashoka's pacifist policies. अशोका ने, हम लोगों ने देखा कि उसने धम्म की पॉलिसी अपनाई थी, कि नॉन वायलेंस की पॉलिसी अपनाई थी। उस वजह से क्या था कि जो मिलिट्री थी, मिलिट्री कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि युद्ध तो अब मिलिट्री जब तक युद्ध नहीं लड़ेगी उसमें प्रिपेयर्डनेस उतनी नहीं रहेगी। तो दम की पॉलिसी से मिलिट्री को वीक किया। मिलिट्री को वीक होने का मेन रीज़न था कि जो रीजनल किंगडम्स थे या रीजनल गवर्नर्स थे उन्होंने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया। Second is economic strain. Maintaining a vast bureaucracy and army drained the treasury. D.D. Koshambi emphasized economic factors. Provincial revolt. Takshila and other provincial revolted against central authority. Brahminical reaction. Pushyamitra Shunga's cope representing a Brahminical reassertion against perceived Buddhist favoritism. Foreign invasion. Bactrian Greeks were already pressing on the northwest frontier. फिर foreign invasion, उन्होंने भी काफ़ी डेंट किया मौर्यन एम्पायर को। यूपीएससी often ask about the causes of Mauryan decline. Remember multiple perspective. Romanov Thapar
emphasizes administrative breakdown. Koshambi stresses economic factor. Ray Chaudhary highlights Ashoka's policies. नेक्स्ट पॉलिटिकल मैप आफ्टर मौर्य। अब मौर्य एम्पायर जब डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप बनता है वो काफ़ी पॉलिटिकल जोन्स में डिवाइड हो जाता है कि रीजनल किंगडम्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद एक पावर वैक्यूम होता है, तो पावर वैक्यूम में रीजनल किंगडम जिसको जितना मिलता है वो उतना हथिया लेता है। मगध जो कि ईस्ट इंडिया में मगध किंगडम था वो शुंगास द्वारा रूल किया जाता था। शुंगास के बाद कन्वास, ये 185 टू 300 BC। देन डेक्कन और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो ये सतवानास द्वारा। सो हम यहाँ पे इंडिया का एक मैप ही बनाते हैं और देखते हैं किस तरह से यहाँ पे सो ये वाला जो पार्ट था ये मगध द्वारा, और ये जो सेंट्रल इंडिया और ये वाला पार्ट था ये सतवानास द्वारा। देन नॉर्थ वेस्ट की बात करें ये इंडो ग्रीक सब अपना लेते हैं। देन नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट की, और इस एरिया में शाकास होते हैं। फिर नॉर्थ वेस्ट में पार्थियंस भी आते हैं, इस कुछ एरिया में पार्थियंस भी होते हैं। नॉर्थ इंडिया जो ये जम्मू कश्मीर वाला है यहाँ पे कुशान्स रूल करते हैं। कनिष्क उनका एक काफ़ी पावरफुल रूलर हुआ था। साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ये चोला चेरा पांड्यास के ये 3 किंगडम होते हैं। फिर कलिंग, इस एरिया में कलिंग जो है वो किंगडम होता है। सो इस तरह से ये इंडिया बटा हुआ होता है इन मेजर किंगडम्स में। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी की बात करें सो फाउंडेशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। द शुंगा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय पुष्यमित्रा शुंगा, द कमांडर इन चीफ ऑफ द लास्ट मौर्यन किंग Brihadraratha. He assassinated Brihadraratha during a military parade review as mentioned in Harsh Charita by Banbhatta and Divyavadana. This is one of the rare instances of military coup in ancient history. सो जो पुष्यमित्रा शुंगा था इसने शुंगा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था, और ये कमांडर इन चीफ था बृहद्रथा का जो कि एक मौर्यन किंग था, और उसको असैसिनेट करके इसने अपना किंगडम स्थापित किया था। कैपिटल थी इसकी पाटलिपुत्रा, कंटिन्यूड एज प्राइमरी कैपिटल। विदेहा मॉडर्न बेसनगर, विदिशा मॉडर्न बेसनगर MP सर्व्ड एज इम्पोर्टेंट सेकेंडरी कैपिटल। अब कहाँ से कहाँ तक था? सो मगध एरिया इसने कवर किया हुआ था, सेंट्रल इंडिया कवर किया हुआ था, और एक्सटेंडेड अप टू जलंधर एंड सियालकोट। सियालकोट पाकिस्तान में है, जलंधर पंजाब में है। सो उस एरिया मतलब नॉर्थ इंडिया वाला एरिया भी इसने कवर किया हुआ था। और अप्रोक्सीमेटली 112 ईयर्स तक ये डायनेस्टी रही थी। इसके 10 रूलर्स हुए थे फ्रॉम 185 टू 73 BCE। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट रूलर्स। पुष्यमित्रा शुंगा सबसे जो पहले जिन्होंने एस्टेब्लिश किया वो थे पुष्यमित्रा शुंगा। ये एक ब्राह्मण थे, जनरल थे। परफॉर्म 2 अश्वमेध यज्ञ मेंशन्ड इन अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धन देवा। मालविका अग्निमित्रा ऑफ कालिदासा। सो ये एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। इसको आप लोग याद कर लेना कि मालविका अग्निमित्रा किसने लिखा था? ये कालिदासा ने लिखा था। repelled the Indo-Greek invasion of Menander, Demetrius appointed his son Agnimitra as viceroy of Vidisha, patron of Brahminical revival. So मौर्यंस जो थे वो बुद्धिज्म को पैट्रनाइज करते थे, बट शुंगास ने ब्राह्मणिज्म को पैट्रनाइज किया। नेक्स्ट जो रूलर हुए वो थे अग्निमित्रा, वो इन्हीं के पुष्यमित्रा के बेटे थे। Patronist of Kalidasa's play Malvika Agnimitra, born from Vidisha, his love story with Malvika is central to the play. So ये मालविका अग्निमित्रम जो कालिदासा ने लिखा था, ये जो प्ले था, इसमें जो स्टोरी बताई गई है वो इन्हीं की स्टोरी बताई गई है कि अग्निमित्रा कैसे मालविका के प्रेम प्रसंग में पड़ गए थे। नेक्स्ट जो रूलर थे वो थे वासुज्येष्ठ।
जो कि अग्निमित्रा को सक्सीड करते हैं। देन वासुमित्रा, इट इज़ ग्रैंडसन ऑफ पुष्यमित्रा, डिफेटेड यमुना ग्रीक नियर द सिंधु रिवर्स अकॉर्डिंग टू मालविका अग्निमित्रम guarded Ashwamedh host. Then Devuti, last Shunga ruler described as deposed and weak, assassinated by his own minister Vasudev Kanva, who founded Kanva dynasty. So शुंगा डायनेस्टी के बाद कानवा डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो जाती है। अब शुंगा डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी की बात करें, मिलिट्री करेक्टर, द डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय मिलिट्री कमांडर एंड शुंगास मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी स्पेशली ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। सो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से क्या होता था कि ग्रीक्स जो थे वो इन्वेड किया करते थे, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मिलिट्री लगाना इम्पोर्टेंट हो जाता था। डिसेंट्रलाइज्ड रूल, प्रोविंसेस वर गवर्न्ड बाय प्रिंसेस कुमार्स एंड अपॉइंटेड गवर्नर्स नॉट एज सेंट्रलाइज्ड एज मौर्य। सो डिसेंट्रलाइज्ड रूल्स था, प्रोविंसेस को कुमार प्रिंस रूल किया करते थे। देन अश्वमेध, Pushyamitra's performance of two Ashwamedha signified a reassertion of Brahminical political ideology and claim to universal sovereignty. So अश्वमेध यज्ञ जो परफॉर्म किए थे पुष्यमित्रा ने, वो ये दर्शाते हैं कि ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दोबारा से रिवाइव होने लग गई थी। देन ग्रीक डिप्लोमेसी, द हेलियोडरस पिलर एट बेसनगर विदिशा शो दैट द इंडो ग्रीक किंग Antiochus sent an ambassador Heliodorus to Shunga court. Heliodorus declared himself a Bhagavad devotee of Vishnu, showing early evidence of Vaishnavism. So ग्रीक्स ने अपने एम्बेसडर्स भी इनकी कोर्ट में भेजे हुए थे, और एक एम्बेसडर जो था वो था हेलियोडरस। नाउ रिलीजियस पॉलिसी की बात करें, ब्राह्मणिकल यशमेध यज्ञ इन्होंने परफॉर्म किए, ब्राह्मणिकल रिवाइवल को इन्होंने प्रमोट किया। वैदिक सैक्रिफाइस परफॉर्मेंस ऑफ अश्वमेध एंड अदर वैदिक सैक्रिफाइस मार्क्ड अ क्लियर डिपार्ट फ्रॉम अशोकन पॉलिसी। सो अशोका जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, इन्होंने ब्राह्मणिकल को ज़्यादा प्रमोट किया। संस्कृत को पैट्रोनाइज किया। पंतंजलि, ऑथर ऑफ महाभाष्य, अ कमेंट्री ऑन पनीनीस ग्रामर, flourished during this period. The development of Sanskrit as a cultural language accelerated. Manusmriti, some scholars date the compilation codification of Manusmriti to the Shunga period. So मनुस्मृति का भी कहा जाता है कि इसी टाइम पे मनुस्मृति भी लिखी गई थी या कंपाइल की गई थी। Now Buddhist persecution debate, Buddhist text like Divya Vadana, Ashok Vadana claim that Pushyamitra persecuted Buddhists, destroying monasteries, killing monks and placing a bounty on Buddhist head. However, this strongly debated. तो यहाँ पे कहा जाता है कि पुष्यमित्रा ने बुद्धिस्ट को भी परसिक्यूट किया था, उनकी मोनास्ट्रीज को ख़त्म किया, मंक्स को किल किया और उनके सर पे इनाम भी रखा था, पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, ये डिबेट का विषय है। एविडेंस फॉर परसिक्यूशन, दिव्या वदना एक्सप्लिसिटली स्टेट्स persecution, the decline of Buddhist sites in some region. Evidence against persecution, the Bharuch Stupa MP, Sanchi Stupa expansion, Gateway Torna and Mahabodhi temple at Bodh Gaya were all enlarged, embellished during the Shunga period. This would be impossible under active persecution. So एक तरफ तो भरूच स्तूपा, सांची स्तूपा, महाबोधि टेम्पल, ये मतलब इनका एक्सपेंशन हुआ, ये और बड़े किए गए। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर हमें ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया जाता होगा। बट वहीं पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है दिव्यावदान, वो साफ साफ लिखता है कि उस टाइम पे बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया जाता था। नेक्स्ट इज शुंगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। So first is Bharuch Stupa. It is in MP, one of the earliest surviving examples of Indian stone sculpture. The railings, Vedika and gateways contain Jatka tail carvings, lotus medallion and Yakshini figures. Buddha is represented by symbols, footprints, Bodhi tree, empty throne, wheel, not in human form. So Bharuch Stupa जो है यहाँ पे बेसिकली हिन्यायान का ट्रेडिशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि बुद्धा जो है वो सिंबल्स के साथ डोनेट किया गया है यहाँ पे
जैसे कि फुटप्रिंट, बोधि ट्री, एम्प्टी थ्रोन, व्हील, ना कि उनकी ह्यूमन फॉर्म यहाँ पे छपी हुई है या बनाई गई है। और भरूच स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है? ये एमपी में लोकेटेड है। नेक्स्ट सांची स्तूपा, ये भी एमपी में लोकेटेड है। द ग्रेट स्तूपा वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय अशोका बट एनलार्ज ड्यूरिंग द शुंगा पीरियड। ये अशोका द्वारा बनाया गया था, बट शुंगास ने इनके गेटवेज और बनाए और स्टोन रेलिंग करवाई गई। फिर सतवाना ने भी इसका और एक्सपेंशन किया। नेक्स्ट, Sunga terracottas. Elaborate terracotta figurine found sites like Koshambi and Ahitchatra show sophisticated craftsmen. Architectural feature: use of some stone railing pattern mimicking wooden prototype, narrative reliefs sculptured depicting Jatka tales and scene from Buddha's life. So ये आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं सुंगा आर्ट के। नेक्स्ट इज की लिटरेरी सोर्सेज ऑफ शुंगा पीरियड। अब जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मालविका अग्निमित्रम। ये एक प्ले है और किसके द्वारा लिखा गया? कालिदासा के द्वारा लिखा गया। इसमें लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्रा एंड मालविका और पुष्यमित्रा का अश्वमेध यज्ञ भी मेंशन किया गया है। वासुमित्रा की विक्ट्री ओवर ग्रीक्स ये भी मेंशन की गई है। देन दिव्यावदान, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और यहाँ पे परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट बाय पुष्यमित्रा इसके क्लेम्स मिलते हैं। देन हर्षचरिता जो कि बाण भट्टा द्वारा लिखा गया था, इसमें मेंशन असैसिनेशन ऑफ बृहद्रथा। बृहद्रथा कौन थे? ये मोरन एम्पायर के रूलर थे और किसके द्वारा असैसिनेट किए गए? पुष्यमित्रा द्वारा। देन महाभाष्य ये लिखा गया पतंजलि द्वारा। ये पनीनीस अष्टध्यायी, इस पे एक कमेंट्री है। एंड मेंशन यवान इन्वेजन। गार्गी स्मिता ये एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है। मेंशन यवान ग्रीक अटैक ऑन मथुरा, पंचाल, साकेत। देन अयोध्या इंस्क्रिप्शन ये धनदेवा इसके उत्तर हैं। कन्फर्म्स पुष्यमित्रास टू अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट इज द कानवा डायनेस्टी। कानवा डायनेस्टी किसके बाद हुई? ये शुंगास के बाद एस्टेब्लिश की गई। कानवा वाज शॉर्ट लिव्ड ब्राह्मण डायनेस्टी दैट रिप्लेस्ड शुंगास इन मगध। इसके फाउंडर थे वासुदेव खान हु वाज मिनिस्टर ऑफ लास्ट शुंगा किंग देवभूति। ही असैसिनेटेड देवभूति एंड असॉफ द थ्रोन। और इसका कैपिटल था पाटलिपुत्रा और इसकी ड्यूरेशन थी 45 ईयर्स, 73 टू 28 BCE। इसके रूलर्स कितने थे? 4 रूलर्स थे बेसिकली, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण एंड सुशारमन। रिलीजियस पॉलिसी ये भी ब्राह्मणिकल रिलीजन को ही ज़्यादा पैट्रोनेज देते थे। एंड द लास्ट कानवा रूलर सुशारमन वाज ओवरथ्रोन्ड बाय सतवाहनास अकॉर्डिंग टू पुराणास। सो सतवाहनास द्वारा इस डायनेस्टी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। पुराण्स में यही लिखा गया है। दिस मार्क द एंड ऑफ मगधन सुप्रीमेसी इन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर सेवरल सेंचुरीज। इस टाइम पे जब ये डायनेस्टी खत्म होती है तो मगध जो रीजन था जिसकी की कई सदियों तक पूरी इंडियन पॉलिटिक्स में मतलब कि दबदबा रहा था कि पहले नंदा डायनेस्टी, फिर अशोका डायनेस्टी, फिर शुंगा, अब वो जाके डिक्लाइन हो चुका था। नेक्स्ट सोर्सेज। अब कानवा डायनेस्टी के सोर्सेज की बात करें। फर्स्ट इज पुराण। द वायु पुराण एंड मत्स्य पुराण प्रोवाइड द मेन इंफॉर्मेशन अबाउट कानवा डायनेस्टी। दे आर लिस्टेड इन पुराणिक genealogy. Limited epigraphic numismatic evidence. Very few coins or inscriptions can be definitely attributed to the Kanva, making this one of the least documented Indian dynasties. Significance की बात करें, the overthrow of Kanvas by the Satavahanas marked the shift of political power from Gangetic plains to Deccan region. After the Kanvas, Magध did not regain its former glory until the rise of Guptas in the 4th century. Now Satavahanas, इस पीरियड में अगर पावरफुल किंगडम कहा जाए तो इस पीरियड का जो डायनेस्टी थी काफ़ी पावरफुल होकर उभरी, वो थी सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना
Satavahanas, also known as Andhras in Puranic literature, were most powerful and long-lasting dynasty of the post-Mauryan period. They dominated the Deccan and part of South and Central India for about 450 years and played a crucial role in political, economic and cultural life of ancient India. Origin की बात करें, the Satavahanas are identified with the Andhras mentioned in Puranas. Their exact origin is debated. Some scholars place their homeland in Andhra region, while others argue for a Western Deccan origin, Maharashtra, based on early inscription. इसके फाउंडर थे सिमुका, also called Sisuka, Sindhuka, regarded as the founder. He overthrew the last Kanva ruler according to the Purans. सो सिमुका ने लास्ट कानवा रूलर को ओवरथ्रो किया था। कैपिटल की बात करें, प्रतिष्ठान मॉडर्न पैठन इन महाराष्ट्र, वो इनकी कैपिटल थी। ऑन दी गोदावरी रिवर, अमरावती आंध्र प्रदेश एंड धन्याकटका, ये दो जो जगहें थी, दो जो लोकेशन थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर्स हुआ करते थे सतवाहनास के। नेक्स्ट नेम, इनका सतवाहना नाम कैसे पड़ा? वन थ्योरी लिंक्स इट टू सतवाहना ड्रिवन बाय 7, possibly referring to a chariot. Their coins show a horse or lion. They used the title Dakshina Pathpati, Lord of the Deccan. इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें इनके, फर्स्ट इज सिमुका, ये फाउंडर थे एंड डिस्ट्रॉयड दी शुंगा कानवा पावर, एस्टैब्लिश द डायनेस्टी, जैन पैटर्न थे। देन सतकर्णी वन परफॉर्म्ड अश्वमेध एंड राज्यस हुआ, यजन मेंशन्ड इन नन घाट इंस्क्रिप्शन बाय हिज वाइफ न्यानका नगनिका, एक्सटेंडेड द किंगडम, मैरिड इनटू महारथी फैमिली। सो सतकर्णी जो थे उन्होंने अश्वमेध और राज्यस हुआ यज्ञ परफॉर्म किए थे। देन हाला 17th रूलर थे और ये फेमस किस लिए थे? ये इन्होंने कंपाइल की थी गथ सप्तशती। सो ये जो एक टेक्स्ट था वो इनके द्वारा कंपाइल किया गया था। ऑल्सो कॉल्ड सतसाई, a Prakrit anthology of 700 love poems. Patrons of Prakrit literature, his minister was Gunadhya, who wrote Brihat Katha in Pashto language. सो हाला जो थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर थे और आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि इन्होंने गथ सप्तशती ये टेक्स्ट कंपाइल किया था। देन गौतमी पुत्र सतकर्णी, सो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर अगर सतवाहना डायनेस्टी के थे तो वो यही थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर, कॉल्ड डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास, यमुनास एंड पालवास, डिफेटेड वेस्टर्न क्षत्रपा नहापना, री-एस्टैब्लिश सतवाहना पावर, डिस्क्राइब्ड इन द नासिक इंस्क्रिप्शन इशूड बाय हिज मदर गौतमी बलाश्री, कॉल्ड हिमसेल्फ एक ब्राह्मण, यूनिक ब्राह्मण, and upheld Varna Sharma Dharma, controlled territory from Krishna River to Malwa. सो इन्होंने सतवाहना पावर को री-एस्टैब्लिश किया, इन्होंने डिस्ट्रॉय किया शाकास को, यमुनास को और पल्लवास को, और ये सबसे मतलब कि ग्रेटेस्ट रूलर थे सतवाहना डायनेस्टी के। देन वशिष्ठ पुत्र पुलमई, सन ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी, मैरिड द डॉटर ऑफ Rudradaman one Shaka Western Kshatrapa, lost territories to Rudradaman. His coins found in large numbers. Amravati Stupa was embellished during his reign. Then Yajna Sri Satkarni, last great Satavahana ruler, recovered some lost territories from Shakas. His coins show ships indicating maritime trade, pattern of trade and commerce. अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो किंग को कहा जाता था राजन, और ये टाइटल्स यूज करते थे दक्षिणा पथपति यानी कि लॉर्ड ऑफ द डेक्कन। मेट्रोनिमिक नेमिंग, अ यूनिक फीचर ऑफ सतवाहना किंग्स वर नेम्ड आफ्टर देयर मदर्स। सो इनकी माता के मेट्रोनिमिक नेमिंग ये ज़्यादातर
फॉलो करते थे कि उनकी माता के नाम पे ही उनका नाम रखा जाता था, जैसे कि गौतमी पुत्र यानी कि सन ऑफ गौतमी, वशिष्ठी पुत्र यानी कि सन ऑफ वशिष्ठी। दिस इंडिकेट हाई स्टेटस ऑफ वुमेन इन सतवाना सोसाइटी। देन फ्यूडेटरी सिस्टम भी फॉलो करते थे, वेल डेवलप्ड फ्यूडेटरी स्ट्रक्चर विच सम स्कॉलर्स सी एज प्रोटो फ्यूडल। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अमात्यास जो कि मिनिस्टर होते थे उनको वो किंग को असिस्ट किया करते थे। उसके बाद होते थे महासेनापति जो कि कमांडर ऑफ आर्मी होते थे। देन महारथीस महाभोजास जो कि फ्यूडेटरी चीफ होते थे हु एक्नॉलेज सतवाना सुजरैनिटी एंड समटाइम्स इंटरमैरिड विद देयर रॉयल फैमिली। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें तो जो अहारा होता था, डिस्ट्रिक्ट को अहारा कहा जाता था। उसके बाद होता था ग्राम विलेज, और विलेज के हेड को क्या कहा जाता था, ग्रामिका। नेक्स्ट रिवेन्यू एंड इकोनॉमी, लैंड ग्रांट्स। द सतवानास इनिशिएटेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस अघारा टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स विच बिकेम अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। सो इन्होंने ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क को टैक्स फ्री विलेजेस भी दी। ट्रेड की बात करें तो वन ऑफ द गोल्डन एज ऑफ ट्रेड, दे कंट्रोल मेजर ट्रेड रूट्स इन द डेक्कन। रोमन ट्रेड थ्रू वेस्टर्न पोर्ट्स लाइक सोपरा, कल्याण, भरूच। रोमन कॉइन्स भी हमें देखने को मिलते हैं डेक्कन में। कॉइनेज की बात करें, सतवाना कॉइनेज वर मेड ऑफ लेड, कॉपर एंड पोटिन, and some silver coins were struck by overstamping Kshatrapa. Their coins shows ships, elephants, horses and Ujjain symbols. Next is Satvana society and religion. Varna Sharma system. Gautami Putra Satkarni has described himself as upholding Varna Shram Dharma and preventing intermixing of वर्ण। सो वर्ण व्यवस्था को ही ये फॉलो करते थे। हाई स्टेटस ऑफ वुमेन, अब नाम से ही पता चलता है कि गौतमी पुत्रा की माता का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे, तो वुमेन्स का हाई स्टेटस हमें देखने को मिलता है। देन रिलीजियस टॉलरेंस, अब भी हमने देखा कि ये टैक्स प्रिविलेजेस ब्राह्मण्स को भी देते थे और बुद्धिस्ट को भी देते थे। सो रिलीजियस टॉलरेंस भी है। करले, बज्जा, कोंडने, नाशिक एंड जुन्नर caves complexes were developed during the period with the royal and mercantile patronage. Buddhism, Amravati Stupa was one of the grandest Buddhist monument. Nagarjunakonda was an important Buddhist center. इनकी लैंग्वेज होती थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत, और इंस्क्रिप्शन हमें किसमें देखने को मिलते हैं, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। और संस्कृत अभी यूज होती थी, बट ऑफिशियल पर्पस के लिए संस्कृत अभी यूज नहीं होती थी इनके पीरियड में। की इंस्क्रिप्शंस एंड सोर्सेज की बात करें, सो फर्स्ट इज नन घाट इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में, एंड इशूड बाय क्वीन ननिका, वाइफ ऑफ सतकर्णी वन, mention Ashwamedh and Rajswa Yajna, earliest known inscription of the dynasty. Next is Nasik inscription, Nasik Prashthi, issued by Gautami Balshari, mother of Gautami Putra Satkarni, praises Gautami Putra as a destroyer of Shakas, Yavanas, Pallavas, describe him as एक ब्रह्मणा। सो ये इंस्क्रिप्शंस पढ़ के ही हमें पता चलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे वो कितने महान रूलर थे। नेक्स्ट इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। दो a Shakya inscription, it mentioned Rudradaman defeating the Satvana twice but sparing them due to matrimonial relation. Then पुरान्स में भी हमें इनके बारे में पता लगता है। सतवाना की जीनियोलॉजी को लिस्ट किया गया पुरान्स में, और इनको आंध्राज कह के बुलाया गया पुरान्स में। देन गथ सप्तशती या फिर सतसाही, ये किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई हाला के द्वारा। 700 प्राकृत वर्ड्स ऑन लव प्रोवाइड इंसाइट इनटू सोशल लाइफ। देन पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेनियन सी, ये एक ग्रीक टेक्स्ट है और 1st सेंचुरी में लिखा गया। ये मेंशन करता है ट्रेड विद सतवाना पोर्ट्स।
नाउ सतवाना डिक्लाइन, ये डायनेस्टी कैसे डिक्लाइन होगी? सबसे पहले शाक्या प्रेशर जो कि थे वेस्टर्न क्षत्रपास स्पेशली रुद्र दमन रिपीटेडली डिफेटेड सतवाना। सो शाक्याज ने इन्हें रिपीटेडली डिफेट किया। देन फ्यूडेटरी रिवोल्ट, लोकल फ्यूडेटरीज लाइक अबीरास, इशकवाकूज, पलवास ये अलग हो गए थे। देन सक्सेसर की बात करें, सतवाना का जो डोमेन था वो डिवाइडेड अमंग इशकवाकुज यानी आंध्रा और कृष्णा रीजन के अराउंड, अभीरास जो कि वेस्टर्न डेक्कन में थे, देन चुट्टूज या फिर कडम्ब ये कर्नाटका रीजन में, और पल्लवाज ने तमिलनाडु को अपने अंडर ले लिया था इनके बाद, सतवानाज के बाद। नेक्स्ट हम बात करें फॉरेन रूलर्स की। इस टाइम पे जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है तो काफ़ी फॉरेन रूलर्स ने भी हमारे इंडिया पे आक्रमण किया, और कुछ ने तो नॉर्थ वेस्ट साइड में अपने किंगडम भी एस्टेब्लिश कर लिए थे। द इंडो ग्रीक्स, यवनाज, इंडो ग्रीक्स वर हेलेनिस्टिक किंग्स हु रूल्ड parts of northwestern India from the remnants of Alexander's eastern conquest. They were the first foreign rulers to issue coin in India and had a profound impact on Indian art, astronomy and coinage. बैकग्राउंड की बात करें, बैक्ट्रिया आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ 323 BC जर्नल Diadochi divided his empire. The Seleucid Empire controlled the eastern territories. Diodotus I declared independence from Seleucids and established Greco-Bactrian kingdom in Bactria, modern northern Afghanistan, southern Uzbekistan, Tajikistan. सो डियोडोटस जो डोटस वन था उसने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया जो कि ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम था, और किस एरिया में था? नॉर्दर्न अफगानिस्तान, साउदर्न उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एरिया में। देन डिमिट्रियस वन, द फर्स्ट ग्रीक किंग टू इन्वेड इंडिया आफ्टर अलेक्जेंडर, ही क्रॉस्ड द हिंदू कुश एंड कॉन्क्योर्ड पार्ट्स ऑफ गंधारा एंड द इंडस वैली। He is sometimes called the king of Indians. He founded the city of Sirkap near Takshila, built on the Greek grid plan. सो ये जो ग्रीक किंग था इसने इंडिया को इन्वेड किया और हिंदू कुश से आगे तक ये आ गया था, और गंधार और इंडस वैली एरिया तक इसने कॉन्क्योर कर लिए थे, और इसको ये भी कहा जाने लगा था कि किंग ऑफ द इंडियंस। नेक्स्ट हम बात करें मिनंदर वन, मिलिंद, द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडो ग्रीक रूलर। ये थे 165 155 टू 130 BC। कैपिटल थी सगला, मॉडर्न सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान। एक्सटेंड कंट्रोल द लार्जेस्ट इंडो ग्रीक टेरिटरी फ्रॉम गंधार टू मथुरा। अब देख रहे हो कहाँ तक इन्होंने कब्जा कर लिया था, मथुरा तक आ गए थे। मिलिंद पानो, ये एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। मिलिंद पानो, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, रिकॉर्ड्स फिलोसफिकल डायलॉग बिटवीन मिनंदर एंड द बुद्धिस्ट मंक नागसेना। सो इसमें क्या होता है कि नागसेना से मिनंदर कुछ क्वेश्चंस पूछता है, फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछता है। उन क्वेश्चंस को इस पूरे टेक्स्ट में नोट किया गया है जिसको कहा जाता है मिलिंद पानो। It indicates Menander was deeply interested in Buddhism and possibly converted. Coinage की बात करें, Menander's coin are the most numerous Indo-Greek coin found in India. They are bilingual, Greek on obverse, Kharosti on reverse, and show him with the epithet Sotar, savior. Some coins show the Buddhist wheel, Dharma Chakra Parivartan. सो बाइलिंगुअल कॉइन थे, एक साइड तो थे ग्रीक और दूसरी साइड थे खरोस्ती स्क्रिप्ट यूज की जाती थी। अब मिनंदर की डेथ के बारे में देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लूटार्क, आफ्टर मिनंदर्स डेथ हिज एशेस वर डिवाइडेड इनटू several cities, a practice reminiscent of distribution of Buddha's relic, suggesting he was highly revered. Milind Pano is one of the most asked fact in UPSC prelim. Remember, Menander equal to Milind. Nagsena was the Buddhist monk. Sagla was the capital. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडो ग्रीक्स टू इंडिया, सबसे पहले तो इनके कोइनेज।
Introduced first gold coins in India. Introduced die struck coinage technique replacing punch mark technique. Bilingual coins, portrait coins showing rulers faces. आर्ट की बात करें, हेलेनिस्टिक आर्ट ट्रेडिशन इन्होंने कंट्रीब्यूट किया. गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म. एस्ट्रोनॉमी, इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी. यवानपुरा यवन जातका इंट्रोड्यूस द concept ऑफ होरोस्कोपी, होरोस्कोप बेस्ड एस्ट्रोलॉजी. आर्किटेक्चर की बात करें, सरकार तक्षशिला. ग्रिड प्लान सिटी लेआउट. टेम्पल ऑफ जंडियाल नियर तक्षशिला रिसेंबल्स अ ग्रीक टेम्पल. कैलेंडर की बात करें, इन्फ्लुएंस इंडियन कैलेंडर सिस्टम. द टर्म यवन बिकेम अ जेनरिक टर्म फॉर योर फॉरेनर्स इन इंडियन टेक्स्ट. ड्रामा, the word yamanika stage curtain in Sanskrit drama is derived from Yavan, suggesting Greek influence on Indian theatre. सो यमनिका क्या होता है? यमनिका जो स्टेज का कर्टन होता है उसको कहा जाता है यमनिका. और ये एक संस्कृत ड्रामा जो होता है उसमें यमनिका का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वो इन्हीं ग्रीक्स से ये कॉन्सेप्ट आया, पर्दे वाला सिस्टम जो था. वाइन एंड विटिकल्चर. इंडियन वर्ड द्रक्ष grape may derive from Greek द्रक्ष. Next, other notable Indo-Greek kings. Antiochus sent ambassador Heliodorus to Shunga court at Vidisha. The Heliodorus pillar Besnagar is a Garud pillar dedicated to Vasudev Vishnu, earliest known record of Greek converting to Vaishnavas. Strato II, last Indo-Greek king defeated by the Shakas. Hermaias, some of his coins were reissued by Kushan king Kujula Kadphises. अब बात करते हैं हम शाकास की. दी साइथीनियस. शाकास वर सेंट्रल एशियन नोमैड्स. Scythians who were pushed into India by Yuchi Kushan pressure. They established several kingdoms in western and northwestern India. शाकास इन्वेजन की बात करें, चेन रिएक्शन थ्योरी. शाका माइग्रेशन इनटू इंडिया वाज पार्ट ऑफ डोमिनो इफेक्ट, सेंट्रल एशियन माइग्रेशन. सो क्या होता था कि जो मान लो किसी ने सेंट्रल एशिया में किंगडम बना रखा है तो उसको जैसे ही वहाँ से भगाया जाता वो आके कहाँ पे अटैक करता था? वो नीचे इंडिया पे आके अटैक करता है. वही इनके साथ हुआ, शाकास के साथ. Hyungnu Dwyangju Huns pushed the Yuchi westward. Yuchi displaced Shaka from the homeland in Central Asia. सो चाइना के शायद ये कोई रूलर थे, इन्होंने ये यूनची इनको वेस्टवर्ड मतलब धकेला. इन्होंने फिर शाक्याज को धकेला और शाक्याज ने आके इंडिया पे यानी कि मूव्ड थ्रू बैक्ट्रिया एंड ईरान टू इंडिया. सो शाकाज जो थे ये सेंट्रल इंडिया से बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते इंडिया में आई. शाका किंगडम इन इंडिया. शाकाज ऑफ तक्षशिला, शाकाज ऑफ मथुरा, वेस्टर्न क्षत्रपास. सो तक्षशिला वाले जो थे वो गंधार नॉर्थ वेस्ट एरिया में थे. मथुरा वाले अपर गंगेटिक प्लेन और वेस्टर्न क्षत्रपास वाले गुजरात, मालवा, राजस्थान में एस्टेब्लिश किया इन्होंने अपना किंगडम. नाउ रुद्र दमन वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट शाका रूलर. जूनागढ़ rock inscription, the first major inscription in India entirely in Sanskrit, जैसे संस्कृत prose. Earlier royal inscription were in Prakrit. This marks the beginning of Sanskrit epoch in Indian epigraphy. So संस्कृत की शुरुआत इन्हीं से होती है, रुद्र दमन से. जो ये जूनागढ़ rock inscription है ये फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन था जिसपे कि संस्कृत लिखी गई थी. Then Sudarshan Lake. Rudra Daman repaired the famous Sudarshan Lake, originally constructed during Chandragupta Maurya's time by Governor Pushyagupta. Embankment added by Ashoka's governor Yavan Raja Tushaspa. This lake was later repaired again by Skandagupta Gupta period. Military achievement की बात करें, defeated the Satavahana king Vashishtiputra Pulumai twice, but spared him due to their matrimonial alliances. He had given his daughter in marriage to the Satavahana king. So इसने अपनी बेटी सतवाहना किंग को दी हुई थी.
पैटर्न ऑफ लर्निंग described as learned in grammar, music, logic and other sciences. Territory controlled Gujarat, Malwa, Konkan and parts of Rajasthan. So West India पे इनका कब्जा था बेसिकली. शाका इरा की बात करें 78 सेंचुरी. सो यहाँ से जो शाका इरा स्टार्ट होता है यानी कि शाका संवत begins from 78 CE, the national calendar of India. और इसे ही नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया माना गया. अडोप्टेड इन 1957 बाय द कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी हेडेड बाय मेघनाथ साहा. देयर इज डिबेट अबाउट हु स्टार्टेड इट. ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू कनिष्क, बट सम स्कॉलर लिंक इट टू शाका चीफ चष्टाना. End of Shakas. The western Kshatrapas branch was finally destroyed by Chandragupta II Vikramaditya of the Gupta dynasty around 395 CE, when he conquered Gujarat and Malwa. The Shaka Kshatrapa dynasty lasted the longest among the foreign rulers in India. So foreign rulers में सबसे ज़्यादा जो राज रहा foreigners का वो शाका का ही रहा और गुप्ता डायनेस्टी द्वारा ही इनकी डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया गया. नेक्स्ट इज द पार्थियंस, पल्लवास. द पार्थियंस ऑफ Iranian origin, also called Palwas, briefly controlled parts of northwestern India, sandwiched between Shakas and Kushans. Key ruler, Vonons, earliest known Indo-Parthian ruler in India. Gondophares, the most important Indo-Parthian king according to early Christian tradition. Act of Thomas, the apostle Saint Thomas visited his court. So Saint Thomas थे ये इनकी कोर्ट में आए थे. Making Gondophares the first Indian king to associated with Christianity. His capital was at Takshila. The Takht-e-Bahi inscription from Mardan, Pakistan help date his reign. गोंडोफरीन के बाद पार्थियंस वर अब्जॉर्ब्ड बाय राइजिंग कुशान एम्पायर. सो इसके बाद कुशान एम्पायर आ जाता है. कुशान्स की बात करें, दी कुशान डायनेस्टी. कुशान वाज द मोस्ट पावरफुल एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट अमंग ऑल फॉरेन डायनेस्टीज दैट रूल इंडिया. दे बिलोंग टू यूची ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया. द कुशान एम्पायर एट इट्स पीक वाज one of the four great empires of the contemporary world, जो कि थे रोम, पार्थिया, पर्शिया एंड हान जो कि चाइना में था और फिर उसके बाद कुशान डायनेस्टी जो कि इंडिया में थी. ओरिजिन की बात करें, यूची ट्राइब ओरिजिनली नोमैड्स फ्रॉम बॉर्डर ऑफ चाइना पुश्ड वेस्टवर्ड बाय द ह्यूनु जियांगयू. दे माइग्रेटेड थ्रू सेंट्रल एशिया. सो चाइनीज़ लोगों ने इनको वेस्टवर्ड पुश किया और उसके बाद जो वेस्ट में शाकाज थे इन्होंने उन्हें डाउन साउथवर्ड पुश किया. फिर बाद में जैसे ये पावरफुल हुए ये भी कॉन्कर करते करते इंडिया में आके इन्होंने भी अपना किंगडम एस्टैब्लिश कर लिया. द 5 clans याबगस. द यूची वर डिवाइडेड इनटू 5 clans. क्यूशैंग कुशान clans अंडर कुजुला कैडफिसिस unified the 5 clans and established the Kushan Empire. Kujula Cadphises unified Yuchi clans, conquered parts of Gandhar, issued coins imitating Roman Augustus and Indo-Greek Hermes coins mentioned in the Rabatak inscriptions. Next, Vima Takpo, son successor of Kujula, extended Kushan control deeper into India. Then Vima Cadphises issued first gold coins in India on a large scale. His coins show Shiva with the trident, indicating Shaivite leanings. Controlled territory from Central Asia to Gangetic Plains. Next, the greatest Kushan ruler Kanishk I. So ये सबसे पावरफुल रूलर हुए हैं कुशान डायनेस्टी के. is the most celebrated Kushan ruler and one of the most important ruler in Indian history. His accession date marks the beginning of Kanishk era. Some scholars identify this with Shaka. जो हमने अभी जो शाका इरा हम लोगों ने पढ़ा 78 सेंचुरी का, वो कहा जाता है कि इन्हीं के पीरियड के दौरान वो शुरू हुआ था. पॉलिटिकल अचीवमेंट.
इनका जो कैपिटल था वो कहाँ था, वो पुरुषपुरा यानी कि पेशावर पाकिस्तान में था, और मथुरा जो था वो इनकी सेकेंडरी कैपिटल थी। वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन एंशिएंट वर्ल्ड स्ट्रेच फ्रॉम सेंट्रल एशिया थ्रू अफगानिस्तान, गंदार, कश्मीर टू वाराणसी एंड पार्ट्स ऑफ गंगेटिक प्लेन। At its peak, it included present-day Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan and North India. So इतना बड़ा रूल इनका था। so, जिसमें कि सेंट्रल एशिया, फिर अफगानिस्तान वाला एरिया और इंडिया का गंगेटिक प्लेन्स तक का एरिया इनके अंडर था। मतलब कि पूरे का पूरा सिल्क रोड जो था चाइना और बाकी वर्ल्ड को कनेक्ट करता था, वो इन्हीं के अंडर होके जाता था। द कुशान कंट्रोल द क्रूशियल सेंट्रल एशियन section of the Silk Road, facilitating trade between Rome, China and India. Relations with China. Kanishk fought the Chinese general Ban Chao and initially lost, later established diplomatic relations with China. Kashmir. Kanishk founded the city of Kanishkpura in Kashmir, mentioned by Kalhana in Rajatarangini. नेक्स्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। सो कनिष्क के अंडर ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी रखी जाती है। उसका वेन्यू होता है कुंडलवना, कश्मीर। अकॉर्डिंग टू मोस्ट ट्रेडिशन, सम सोर्सेज से जलंधर। वो वैसे तो जो वेन्यू माना जाता है वो है कुंडलवना कश्मीर में, पर कई सोर्सेज में ये भी बताया जाता है कि जलंधर में भी वो शायद जलंधर में हेल्ड की गई थी। इसके प्रेसिडेंट थे वासु मित्रा और वाइस प्रेसिडेंट थे अशव घोष। अशव घोष ने क्या लिखा था? अशव घोष ने लिखा था बुद्ध चरिता, यानी कि बुद्धा की बायोग्राफी। बुद्धा की बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई थी? अशव घोष के द्वारा। की आउटकम, कंपाइलेशन ऑफ एक्सटेंसिव कमेंट्रीज ऑन त्रिपिटका कॉल्ड द Mahavibhasa Shastra, the great commentary. These commentary was said to be engraved on the copper plate and deposited in stupa. Sectarian outcome. The council formed split between Hinayan and Mahayana Buddhism. So इस काउंसिल में हिनयान और महायान ये दो ट्रेडिशन में बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था। महायान जो थे वो बुद्धा को एज अ गॉड मानते थे और मूर्ति पूजा करते थे, बट वहीं पे हिनयान जो थे वो ऑर्थोडॉक्स थे, वो ह्यूमन फॉर्म में बुद्धा को नहीं पूजते थे। गेन्ड ऑफिशियल पैटर्नेज अंडर कनिष्क। कंपैरिजन, दिस वाज द लास्ट ऑफ द फोर ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट काउंसिल राजगृह अंडर अजातशत्रु, सेकंड वैशाली अंडर कालशोका, थर्ड पाटलिपुत्रा अंडर अशोका, फोर्थ कश्मीर अंडर कनिष्क। नेक्स्ट हम लोग बात करें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंप्लीट टेबल। सो फर्स्ट रखी गई 483 BCE में राजगृह में अजात शत्रु द्वारा। महाकसप्पा इसके प्रेसिडेंट थे और कंपाइलेशन हुआ सुत्ता पिताका का, अनंदा द्वारा और विनाया पताका का उपाली द्वारा। सेकंड रखी गई वैशाली में कालशोका द्वारा, इसके प्रेसिडेंट थे सभाकमी। यहाँ पे था वर्दिन और महासंगिका में स्प्लिट हो जाती है। थर्ड रखी गई पाटलिपुत्रा में अशोका द्वारा और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोगली पुट्टा तिस्सा। यहाँ पे अभिधम पिताका का कंपाइलेशन होता है। फोर्थ रखी गई कुंडलवना में कनिष्क द्वारा और इसके प्रेसिडेंट थे वासुमित्रा। यहाँ पे महायान और हिनयान का फॉर्मलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कनिष्क पैटर्नेज ऑफ बुद्धिज्म एंड अदर रिलीजन। सो महायान को इन्होंने पैटर्नेज किया और इन्हें कहा जाता था सेकंड अशोका। गंधार स्कूल इन्हीं के अंडर फ्लरिश किया जो कि अफगानिस्तान एरिया में था। फर्स्ट एंथ्रोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा, इससे पहले बुद्धा को एज अ सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता था, बट यहाँ पे उनकी मूर्ति बनाई गई। रिलीजियस इलेक्टिसिज्म, despite being a Buddhist, Kanishk's coin showed deities from multiple religions: Buddha, Shiva, Mithra, Helios and various Zoroastrian deities. This reflects the cosmopolitan nature of Kushan Empire. Monasteries and stupa, built a stupa at Purushpura. So Peshawar में इसने स्तूपा भी एक बनाया। Described by Chinese pilgrim faction and Zunzang as one of the tallest structure in the ancient world. सो कहा जाता है कि वो टाला स्ट्रक्चर इन द एंशिएंट वर्ल्ड था।
नेक्स्ट कनिष्क कोर्ट, स्कॉलर्स एंड लुमिनरीज। कनिष्क के कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे अशव घोष थे जो कि बुद्धिस्ट पोइट और फिलोसफर थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा इन संस्कृत काव्य। फर्स्ट संस्कृत बायोग्राफी थी। सुंदरनंदा पोइम लिखी। देन सरीपुत्र प्रकरणा, द फर्स्ट संस्कृत ड्रामा कॉल्ड इंडियन वोल्टायर, इन्हें इंडियन वोल्टायर भी कहा जाता था। देन जो थे नागार्जुना, ये भी बुद्धिस्ट फिलोसफर थे और इन्होंने फाउंड किया मध्यमिका शून्यवदा स्कूल ऑफ महायान फिलोसफी। रोट मूल मध्यम मध्यम कक्रिका called Einstein of India, also known for contribution to chemistry and metallurgy। देन वासुमित्रा, ये भी बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, इन्होंने प्रेसाइड की थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। देन चरक्का, ये फिजिशियन थे। चरक्का संहिता ट्रीटाइज ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा द फाउंडेशन ऑफ इंडियन मेडिसिन, कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। देन मठेरा, बुद्धिस्ट टीचर थे, नोटेड बुद्धिस्ट फिलोसफर एट कनिष्क कोर्ट। देन संघर्षका, बुद्धिस्ट मॉन्क, ये कौन थे? ये चैप्लियन टू कनिष्क थे। नेक्स्ट हम लोग बात करें कुषाण एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी की। टाइटल, कुषाण किंग यूज्ड ग्रैंडियोस टाइटल, यानी कि महाराजा, रजती राजा, किंग्स ऑफ किंग्स, देवपुत्रा, सन ऑफ गॉड, शोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, एंड कैसर शोइंग रोमन इन्फ्लुएंस। सो कुषाण किंग्स ऐसे ऐसे मतलब कि महाराजा, रजत राजा, इस तरह के नाम के आगे अपने नाम लगाया करते थे। सत्रप सिस्टम, लाइक द शाका दे एम्प्लॉयड क्षत्रपास एंड महाक्षत्रपास टू गवर्न प्रोविंसेस। Military cavalry was the mainstay. They introduced practice of horse riding with stirrups and heavy cavalry in Indian warfare. नेक्स्ट coinage की बात करें, issued gold। सो दिनार इन्होंने इशू किया था। देन सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, देयर गोल्ड कॉइन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमन दिनारी। रोमन दिनारी द्वारा उनके गोल्ड कॉइन इन्फ्लुएंस थे। विमा कटफिश गोल्ड कॉइन्स वर दी फर्स्ट लार्ज स्केल गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। सोने के सिक्के सबसे पहले इन्होंने ही इंडिया में चलाए थे। ट्रेड की बात करें तो सेंट्रल एशिया से गंगेटिक प्लेन तक इनका जो रीजन था, और उसी रीजन के अंडर से उसी रीजन में ही सिल्क रोड पास होता था। तो सिल्क रोड पे इनका कंट्रोल रहता था, मतलब कि मेन जैसे कि रोम, चाइना, इंडिया, इस एरिया में ट्रेड को सारा यही कंट्रोल किया करते थे। अर्बन डेवलपमेंट, इन्होंने तक्षशिला, मथुरा, पेशावर, बेग्राम, इस जैसी सिटीज इन्होंने डेवलप की। लेटर कुषाण एंड डिक्लाइन, Huvishika, successor of Kanishk, shifted capital to Mathura and his coins show diverse religious symbol. Vasudeva I, last great Kushan ruler, his coins show only Shiva, indicating complete Indianization. His name itself is a Hindu, Krishna's family name. सो यहाँ तक आते आते जो कुषाण थे वो कम्प्लीटली इंडियंस हो गए थे। जैसे कि वासुदेवा अब इंडियन नेम है, ये उनके एक राजा का नाम था। डिक्लाइन, द कुषाण एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू ससनीद, पर्शियन प्रेशर फ्रॉम द वेस्ट, राइज ऑफ लोकल इंडियन पावर्स एंड इंटरनल वीकनेसेस। द लेटर कुषाण्स बिकेम petty rulers who were eventually absorbed by the Gupta Empire. नेक्स्ट हम लोग बात करें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन रूलर्स। सो फर्स्ट कॉइनेज की बात करें तो बेटर कॉइनेज सिस्टम इन्होंने चलाया, गोल्ड कॉइन्स, डाई स्ट्रक कॉइन्स और बाईलिंगुअल कॉइन। देन कवेलरी वारफेयर, सेंट्रल एशियन नोमैडिक मिलिट्री टेक्निक इन्होंने यूज की। सिल्क रोड ट्रेड जो था उसको इन्होंने कंट्रोल किया। रोमन गोल्ड पोर्ड इनटू इंडिया। नेक्स्ट आर्ट की बात करें, गंधार स्कूल इनके अंदर डेवलप हुआ। हेलेनिस्टिक रियलिज्म इनके अंदर डेवलप हुआ। रिलीजन की बात करें, इन्होंने महायान जो स्कूल था, बुद्धिज्म का ट्रेडिशन था, उसको पैट्रनाइज किया। संस्कृत रिवाइवल,
नाउ रुद्र दमन से जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, वहाँ पे संस्कृत यूज की गई। सो संस्कृत को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। कैलेंडर की बात करें, शाका इरा इन्हीं के अंडर शुरू हुआ था, जो कि नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया है। Assimilation. All foreign rulers were eventually Indianized, adopting Indian religions, languages and custom. So इंडिया में रह के फिर वो इंडियंस ही बन गए। नेक्स्ट हम लोग बात करें सेक्शन 7, गंधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। द पोस्ट मॉडर्न पीरियड witnessed a revolution of Indian art, particularly in sculpture. Three great school of arts emerged: Gandhar, Mathura, Amravati. These schools are amongst the most frequently tested topics in UPSC prelim. सो जब आप लोगों ने बुद्धिज़्म पढ़ा होगा उस टाइम पे आप लोगों ने ये तीनों स्कूल्स को डिटेल में पढ़ा होगा इन आर्ट के बारे में, और आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट हम लोग बात करें गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की। सो ये आर्ट हम जियोग्राफिकली देखें तो किस तरह से ये डेवलप हुआ था इंडिया में, कि कहाँ कहाँ कौन सा आर्ट डेवलप हुई थी। सो ये इंडिया का मैप है। हम लोग अगर ढंग से देखें तो सो यहाँ पे जो ये वाला रीजन था, अफगानिस्तान, कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, यहाँ पे गंधार स्कूल डेवलप हुआ था। मतलब कि ये आर्ट को फॉलो किया जाता था, जो भी आर्ट बनाई जाती थी। ये जो ये वाला एरिया था, यहाँ पे कौन सा स्कूल ज़्यादा प्रेवलेंट था, इस स्कूल यहाँ की आर्ट को कहा जाता था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। और ये वाला जो पार्ट था यहाँ पे जो था, यहाँ पे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट प्रोपेल किया गया। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पे प्रेवलेंट था। सो इस तरह से तीनों स्कूल ऑफ आर्ट, अगर लोकेशन वाइज की बात करें तो इस तरह से प्रैक्टिस किए जाते थे। फर्स्ट सेंचुरी BC टू 5th सेंचुरी BC, पीक अंडर कुशान्स स्पेशली कनिष्क। लोकेशन बात करें, गंधार रीजन में था, यानी कि पेशावर वैली फोर्ट, तक्षशिला इन पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान। कुशान रूलर्स ने इसे पैटर्नाइज किया था। ऑल्सो इंडो ग्रीक एंड शाका इन्फ्लुएंस भी हमें इसमें देखने को मिलता है। मेन जो जो मतलब इसका यूनिक पार्ट था वो ये था कि यहाँ पे ग्रे स्किट स्टोन यूज किया जाता है इस स्कूल ऑफ आर्ट में। और दूसरा वो भी हम देखेंगे, ऑल्सो स्ट्रक्चर लाइम प्लास्टर इन लेटर फेज। अदर नेम, इसको और किस नाम से बुलाया जाता है, ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट, ग्रीको रोमन आर्ट, इंडो ग्रीक आर्ट। सो एक तो ये मटेरियल। अब हम आगे देखते हैं की फीचर्स की बात करें। हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ हेलेनिस्टिक, ग्रीक एंड रोमन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। सो अगर आप लोगों ने इटली, फ्रांस, इन जगहों की देखो तो वहाँ पे जो मूर्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल ऐसे, मतलब कि असली इंसान की मूर्ति हो इस तरह की होती है कि माइन्यूट डिटेल्स तक वो मूर्तियाँ बनाई गई होती हैं, कि उनके वेन्स भी बॉडी में दिख रही होती हैं, एब्स दिख रहे होते हैं, पूरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर। तो उसी तरह की मूर्तियाँ इस आर्ट में भी बनाई जाती थी। और फर्स्ट बुद्धा इमेज, कुषाण रूलर्स जो थे उन्होंने महायान को ज़्यादा पैटर्नाइज किया, और महायान बुद्धा को एज ए गॉड की तरह पूजते थे, मतलब उसकी मूर्ति पूजा किया करते थे। Gandhar school is credited with creating the first anthropomorphic image of Buddha. Earlier, Buddha was represented only by symbols. सो यहाँ पे बुद्धा की अपीयरेंस उन्हीं उसी की तरह जो ग्रीक जो मूर्तियाँ हैं उन्हीं की तरह यहाँ पे भी बुद्धा की मूर्ति बनाई गई, कि वेवी हेयर्स लाइक अपोलो, और हालो, मतलब उनके सर के पीछे एक ऐसा स्फेरिक, मतलब सर्कल सा बनाया जाता है जिससे कि उनके वो लगता है कि वो डिवाइन बीइंग है या फिर गॉड है। हैवी ड्रापरी विद डीप फोल्ड्स, ही अपीयर मोर लाइक अ ग्रीक गॉड देन इंडियन सेज। Bodhisattva images, rich ornamentation, jewelry, turban, muscular bodies, very different from simple Buddha image. Narrative panel, scenes from Buddha's life depicted in sequential panels.
स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन की बात करें, कंपेयर टू मथुरा आर्ट, गंधार आर्ट इज कंसिडर्ड मोर फोकस ऑन फिजिकल ब्यूटी एंड लेस ऑन स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन। द इमोशन इज समवट सबड्यूड। थीम्स की बात करें, प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट, बुद्धा के रिलेटेड ही पूरी थीम्स इस आर्ट में बनाई जाती थी। इम्पोर्टेंट साइट की बात करें, तक्षशिला, पेशावर साहिब, शहबाजगढ़ी, जमालगढ़ी, तख्तेबाही, बामियान। बामियान में जाइंट बुद्धा स्टैचूज हैं, बहुत ही बड़े बुद्धा स्टैचूज हैं, वो एक पूरे पहाड़ में खोद के बनाए गए थे। कई सौ फीट बड़े स्टैचू बनाए गए थे, जो कि तालिबान द्वारा 2001 में डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। नेक्स्ट हम बात करें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की। सो ये 2nd सेंचुरी BC 12th सेंचुरी तक ये आर्ट परफॉर्म की जाती है। लोकेशन थी मथुरा, मॉडर्न उत्तर प्रदेश। पैट्रोनेज कुषाण रूलर, शुंगा शाका, लेटर गुप्ता पैट्रोनेज। यहाँ पे मटेरियल कौन सा यूज होता है, यहाँ पे रेड सैंडस्टोन फ्रॉम सीकरी नियर फतेहपुर सीकरी, राजस्थान। सो यहाँ पे रेड सैंडस्टोन यूज होता है। की फीचर, इंडिजीनियस इंडियन, प्योरली इंडियन इन इंस्पिरेशन, नो फॉरेन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। बुद्धा शोन इन शेव्ड हेड। वहाँ पे क्या था, गंधार स्कूल में वेवी हेयर थे, करली हेयर थे, यहाँ पे शेव्ड हेड। थिन मुस्लिन गारमेंट। पद्मासना, राइट हैंड इन अभ्या मुद्रा, हालो डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिक पैटर्न। वहाँ पे सिंपल हालो था, यहाँ पे डेकोरेटेड हालो है। स्माइलिंग फेसेस, मथुरा बुद्धा हैज वार्म स्पिरिचुअल स्माइल एक्सप्रेसिंग इनर जॉय एंड कंपैशन। Censor's quality figures are robust, flashy and full of energy. Yaksh and Yakshi figures are voluptuous and dynamic. Unlike Gandhar, mainly Buddhist, मथुरा जो था वो बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू, ये तीनों रिलीजन्स में इस आर्ट को फॉलो किया जाता था। The famous standing Buddha of Mathura Kushan period showed typical Mathura features. Right hand raised in Abhya Mudra, left hand on hip, thin robes hollow. सो स्टैंडिंग बुद्धा जो है मथुरा में वो फेमस है, इस आर्ट का एक फेमस एग्जाम्पल है। हेडलेस कनिष्क स्टैचू, अ फेमस हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क फाउंड एट मथुरा shows him in Central Asian dress with boots and heavy coat holding a sword or mace. Standing Buddha of Mathura, seated Buddha of Katra Mound, headless Kanishka statue, Yaksh Yakshini figure, Jain Tirthankara images, especially Rishabhana. So ये इस आर्ट के इम्पोर्टेंट स्पेसिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की। ये बेसिकली डेक्कन एरिया में ये आर्ट फॉलो की जाती थी। लोकेशन थी अमरावती एंड नागा अर्जुना कोंडा, मॉडर्न आंध्र प्रदेश, अलोंग दी कृष्णा रिवर। पेट्रोनेज, सतवाना डायनेस्टी एंड लेटर इक्ष्वाकु डायनेस्टी। मटेरियल कौन सा यूज किया जाता था, वाइट मटेरियल लाइमस्टोन, वाइट मार्बल लाइमस्टोन यहाँ पे यूज किया जाता था। की फीचर्स की हम लोग बात करें, सो फर्स्ट इज नरेटिव आर्ट। द अमरावती स्कूल एक्सेल्स इन नरेटिव स्कल्पचर पैनल डिपिक्टिंग लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जातका टेल। सो इस आर्ट में ये एक स्टोरी टेलिंग की तरह इस आर्ट को परफॉर्म किया जाता था कि जो भी मूर्तियां वगैरह बनाई जाती है उनमें एक स्टोरी की तरह इनमें दिखाया जाता था। डायनामिक फिगर, लाइक स्टैटिक ग्रैंडियर of Gandhar or robust warmth of Mathura, Amravati is characterized by movement, grace and fluidity. Figures are shown in motion with swaying body and expressive gesture. So motion में दिखाए जाते थे figure. In early phase, Buddha was represented by symbols, but later phase, Buddha human images of Buddha prepared. So शुरू में बुद्धा को सिंबल्स के थ्रू दिखाया जाता था, बाद में उसकी मूर्तियां भी बनने लगी थी। The Amravati Stupa art, one of the largest Buddhist stupa in India, diameter approx 50 meters. Its railing and dome slabs were covered with elaborate sculptural panel.
सो अमरावती स्तूपा काफ़ी फेमस स्तूपा है और कहा जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन इंडिया है। Figures are tall, slim, and elongated compared to heavier Mathura figures. Like Mathura, Amravati is purely Indian with no foreign influence. Amravati influenced the art of Southeast Asia, especially Sri Lanka, Myanmar, Thailand, and Indonesia. नेक्स्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपेरेटिव टेबल है। सो यहाँ पे गंधार स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल में एक कंपेरेटिव टेबल है। फर्स्ट तो जो हमने मैप बना के रीजन देखा था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, आंध्र प्रदेश, सो तीनों इस तरह से डिवाइडेड थी। यहाँ पे लिख दे ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है और उसके बाद ये मथुरा और ये जो है ये है अमरावती। सो इस तरह से ये जो है ये डिवाइडेड है। मटेरियल की बात करें, गंधार में ग्रे ब्लू ग्रे स्किट, मथुरा में रेड सैंडस्टोन, अमरावती में वाइट मार्बल। इन्फ्लुएंस की बात करें, गंधार में ग्रीको रोमन, मथुरा में प्योरली इंडिजीनियस, अमरावती में भी प्योरली इंडिजीनियस। पैट्रोनेज कुशांस, मथुरा में भी कुशांस, अमरावती में सतवाना और इशकवाकुज। रिलीजन गंधार मेनली बुद्धिस्ट, मथुरा बुद्धिस्ट जैन प्लस हिंदू, अमरावती भी मेनली बुद्धिस्ट। बुद्धा शेयर यहाँ पे बेबी करली, मथुरा में टाइट कर्ल्स और अमरावती में कर्ल्स सिमिलर टू मथुरा। ड्रैपरी मतलब कपड़ों की यहाँ बात की गई है, हैवी फोल्ड रोमन टोगा, मथुरा में थिन ट्रांसपेरेंट मुस्लिम कपड़ा यूज हुआ, अमरावती में भी थिन क्लिंगिंग। एक्सप्रेशन serene but somber, sad, warm, spiritual smile, graceful, dynamic. बॉडी टाइप गंधार स्कूल में रियलिस्टिक मस्कुलर, मथुरा में रोबस्ट फ्लैशी, अमरावती में स्लिम एलोंगेटेड ग्रेसफुल। हेलो गंधार में प्लेन सिंपल, मथुरा में डेकोरेटेड, अमरावती में भी ऑर्नेट। सिंबल गंधार स्कूल में ह्यूमन बुद्धा शुरू से ही, मथुरा में भी ह्यूमन बुद्धा शुरू से ही, अमरावती में पहले सिंबल बाद में ह्यूमन। मूवमेंट गंधार स्कूल में ऐसे सिंपल मतलब अगर बुद्धा की इमेज है तो वो ऐसे स्टैंडिंग या फिर सिटिंग मतलब स्टैटिक पोजीशन में। मथुरा में मॉडरेट है बट अमरावती में हाईली डायनामिक या फिर फ्लोइंग स्टेट में। फॉरेन इन्फ्लुएंस गंधार स्कूल में ग्रीको रोमन, मथुरा में कोई भी नहीं, अमरावती में भी कोई भी नहीं। करंट लोकेशन गंधार स्कूल मोस्टली इन पाकिस्तान, मथुरा स्कूल मथुरा म्यूजियम और अमरावती चेन्नई म्यूजियम। इम्पोर्टेंट मुद्रास ऑफ बुद्धा, बुद्धा की जो मूर्तियों में मुद्रास बनी होती है उनमें से इम्पोर्टेंट मुद्रा अभय मुद्रा, राइट एंड रेज पाल्म आउटवर्ड। सो ऐसे जैसे आशीर्वाद दे रहे हो वो, सो इस मुद्रा को कहा जाता है अभय मुद्रा। ये फियरलेस प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग को मतलब शो करती है। देन भूमि स्पर्श, इसमें से जो राइट हैंड है वो अर्थ को टच कर रहा था, यानी कि कॉलिंग अर्थ हैज विटनेस टू एनलाइटनमेंट। देन ध्यान मुद्रा, यहाँ पे बोथ हैंड्स ऑन लैप पाम्स आउटवर्ड, ये जैसे हम लोग बैठ के तपस्या नहीं करते उस पोजीशन को ध्यान मुद्रा कहा जाता है। देन धर्म चक्र मुद्रा, बोथ हैंड्स एट चेस्ट, फिंगर्स फॉर्मिंग अ व्हील, टर्निंग व्हील द लाव टर्निंग द व्हील ऑफ लाव फॉर सर्वन एंड सारनाथ। देन व्राद मुद्रा, राइट हैंड पॉइंटिंग डाउनवर्ड, पाम आउट, ये दर्शाता है चैरिटी, ग्रांटिंग विशेस और कंपैशन को। देन वितर्क मुद्रा, थंब एंड इंडेक्स फिंगर टचिंग, फॉर्मिंग सर्कल, टीचिंग, डिस्कशन एंड इंटेलेक्चुअल डिबेट को ये मुद्रा दर्शाती है। सो ये इंपॉर्टेंट मुद्राएं हैं, ये आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें सो संगम एज की। संगम एज जो थी ये बिल्कुल साउथ इंडिया तमिलनाडु वाली एरिया में संगम एज
संगम लिटरेचर हमें देखने को मिलता है। इसका पीरियड था 3rd सेंचुरी BCE टू 3rd सेंचुरी CE। Refers to the period in South Indian history when Tamil country was ruled by three major dynasties, Cheras, Cholas and Pandya. A remarkable body of Tamil literature known as Sangam literature was composed. This period provides the earliest detailed picture of South Indian society, economy and culture. Now what is Sangam? Definition की बात करें, Sangam literally mean assembly or academy of Tamil poets and scholars. So तमिल पोइट जब इकट्ठे होते थे तो उससे कहा जाता था संगम, या फिर उसकी असेंबली को कहा जाता था संगम। अकॉर्डिंग टू तमिल ट्रेडिशन 3 संगम लिटरेरी अकेडमीज वर हेल्ड। तो जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स रखी गई थी 1st, 2nd, 3rd और 4th, उसी तरह से जो तमिल ट्रेडिशन के जो स्कॉलर्स थे वो इकट्ठे हुए थे और 3 संगम रखे गए थे। 1st मुत्थल संगम, 2nd इरंदम संगम, 3rd मुंदरम संगम। सो फर्स्ट की हम बात करें, मदुराई में रखा गया था 4440 ईयर्स एगो, और कहा जाता है कि ये अटेंड किया गया था गोट्स और लेजेंडरी सेजेस द्वारा। प्योरली मिथिकल, इसका कोई भी लिटरेरी वर्क सरवाइव नहीं कर पाया था इस संगम का। उसके बाद 2nd संगम इरंदम, ये कप्तपुरम में, ये भी सबमर्ज हो गया। ये 3700 ईयर्स एगो रखा गया था। और इसका एक जो कि है टोल कपियम, ये ओल्डेस्ट एक्सटेंट ऑफ तमिल ग्रामर है। ये थोड़ा सा मतलब पार्टली सर्वाइव किया है। 3rd जो कि मुंदरम संगल थी, ये मदुराई में रखी गई थी 1850 ईयर्स एगो। All surviving Sangam works are from this period patronized by Pandyan king. So जितने भी संगम मतलब कि इन संगम के जो भी मतलब कि वर्क है वो इसी संगम के हैं, 3rd संगम के हैं, जो कि अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। So historical validity, the first 2 संगम्स are considered legendary या फिर mythical. The 3rd Sangam at Madurai is historically accepted. All surviving Sangam literature belongs to 3rd Sangam. Pandya patronage. The Pandya kings of Madurai were the patrons of Sangam academies. Next हम बात करें संगम literature. Comprehensive overview. Sangam literature is among the oldest surviving secular literature in India. It consists of 2381 poems composed by 473 poets, including 30 women poets. The literature is remarkable for its secular character. Unlike ancient Indian literature, it is predominantly religious. So यहाँ पे 2381 poems इसमें लिखी गई और 473 poets थे, जिसमें से कि 30 women poets थी। और इसको 2 कैटेगरीज में इस लिटरेचर को डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इज अगम, जो कि इनर लव था, यानी कि लव, रोमांस, डोमेस्टिक लाइफ। 5 टिनाइज, poems about various aspects of love, union, separation, waiting, elopement, patience। जो कैटेगरी थी संगम लिटरेचर की वो थी पुराण। ये किसके बारे में थे? ये थे वॉर, हीरोइज्म, पॉलिटिक्स, डेथ और जनरोसिटी के बारे में। 79 थे इसमें पोइम्स अबाउट किंग्स, बैटल्स, वैलियर, डेथ एंड चैरिटी। सो इन 2 कैटेगरीज में पूरा संगम डिवाइड था। फर्स्ट था अगम, जो कि इनर लव, रोमांस और डोमेस्टिक लाइफ के बारे में था, जिसमें से कि पोइम्स थी वो लव, यूनियन, सेपरेशन, वेटिंग, एलोपमेंट और पेशेंस के बारे में थी। 5 टिनाइज की बात करें, यूनिक टू तमिल लिटर, ईच लैंडस्केप तिनाई वाज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ लव, a specific deity and specific flora fauna. This is one of the sophisticated literary convention in the ancient world. So first थी कुरिंजी, ये माउंटेन्स हिल्स के बारे में थी। यूनियन ऑफ लवर्स,
मुरुगन सुब्रमण्य कुरुंजी फ्लावर एलिफेंट। ये कुरुंजी जो फ्लावर्स हैं ये जो वहाँ कौन सी जो कि नीलगिरी पर्वत है वहाँ पे ये फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। कुरुंजी फ्लावर कहाँ पे? नीलगिरी माउंटेन्स पे। सेकंड टिनाई इज मुलाई। ये फॉरेस्ट पेस्टोरल लैंड, पेशेंट वेटिंग, मयोन, विष्णु कृष्णा और जैस्मिन डियर्स और पिकॉक, इनके बारे में है। थर्ड इज मरुदन। ये 5 रिवर प्लेन्स, इसमें कोरल सल्किंग बिटवीन लवर्स, जो डाइटी थे वो थे इंद्र और लोटस मैंगो बफेलो, ये फ्लोरा और फाउना थे। देन नेटल सीशोर कोस्टल सेपरेशन एंड पिनिंग, वर्ल, वाटर लिली, शार्क, सीगुल। देन प्लाई, ये डेजर्ट और वेस्टलैंड के बारे में, सेपरेशन ड्यू टू एलोवमेंट और जर्नी। दुर्ग, कोरावल, कैक्टस, वल्चर, ड्राई पाम के बारे में है। देन मेजर संगम वर्क। मेजर संगम वर्क के बारे में हम लोग देखें। एट एंथोलॉजी। फर्स्ट इज नरी नाई, जिसमें कि 400 पॉइंट्स हैं और ये अगम लव के बारे में है, लव पॉइंट्स ऑफ हाई लिटरेरी क्वालिटी। देन कुरुंथोगाई, इसमें 401 पॉइंट्स है, अगम लव के बारे में, शोर लव पॉइंट्स। देन इनगुरु नूरू, इसमें 500 पॉइंट्स हैं, ये भी लव के बारे में है, 5 सेट्स ऑफ 100 पॉइंट ईच ऑफ 5 टिनाइज। देन पदित्रुपट्टू, इसमें 100 पॉइंट्स हैं, पुराण वोर के बारे में है, points praising 10 चेरा kings, 10 points per king की source for चेरा history। देन पुराण नुरु, इसमें 400 पॉइंट्स हैं, ये वॉर के बारे में है, हीरोइक पॉइंट, मेजर हिस्टोरिकल सोर्स, मेंशन रोमन ट्रेड, गोल्ड कॉइन्स। देन अगन नुरु, इसमें 400 पॉइंट्स है, ये लव के बारे में है, लॉन्ग लव पॉइंट्स ऑल्सो कॉल्ड नेदुन थोगई। देन कलिथोगई, इसमें 150 पॉइंट्स है, अगम लव के बारे में, पॉइंट्स इन कालीनेटर। देन परिपटई, इसमें 70 पॉइंट्स हैं, ये मिक्स्ड है, डिवोशनल पॉइंट्स टू मुरुगन एंड थिरुमल विष्णु। नेक्स्ट हम लोग बात करें पट्टू पट्टू 10 इडियल्स लॉन्ग पॉइंट। ये है थिरुमुरुगर पड़ाई नक्कीकर, गाइड टू मुरुगन्स टेम्पल, अर्लीस्ट लिटरेरी वर्क ऑन मुरुगन वर्शिप। देन पोरुंडरी पड़ाई, ये है मुद्दथम्मा कन्यर, गाइड पॉइंट टू चोला किंग। देन सिरुपनर पड़ाई, ये नेत्रिनई अय्यनर, गाइड पॉइंट टू माइनर चीफ्टिन। सो ये पूरा एक टेबल दिया गया है लॉन्ग पॉइंट्स के द्वारा में, इसे आप लोग पढ़ लेना और याद कर लेना। ये बेसिकली सिंपल संगम लिटरेचर पे कोई क्वेश्चन आया तो वो पूछेगा कि ये पॉइंट, बेसिकली पूछेगा कि ये किस मतलब कि ये नाम आ गया, फॉर एग्जांपल मूल्य ही पट्टू, ये किसे बिलोंग करती है, संगम लिटरेचर को या किसी और पीरियड को, सो दैट्स इट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। देन टोलका पियम, इसके जो उत्तर थे वो थे टोलका पियर, सेड टू बी अ डिसिपल ऑफ सेज अगस्त्या, नेचर ओल्डेस्ट एक्सटेंट तमिल ग्रामर एंड लिटरेरी ट्रीटीज, रिटन इन सूत्रा फॉर्म। देन 3 डिविजन्स थी इसकी टोलका पियम की। फर्स्ट इज अजोता तिग्रम, देन सोलाटीग्राम, देन पोरुलट्टीग्राम। The Porulattigram section contains the theory of Tanai. Significance provide the theoretical framework for all Sangam poetry. The Tanai system is explained here. Also give information about the social structure of early Tamil history, including references to caste system, Rasar, Athnar, Vyar, Valar. Then Pathine Kilkanakku 18 minor works, जो कि पोस्ट संगम पीरियड के बाद की बात करें। दीज बिलोंग टू पोस्ट संगम पीरियड। द इम्पोर्टेंट पीरियड्स आर थिरुकुराल, नल्लादियार, सिलापदिकरम एंड मणिमेकलाई। थिरुकुराल बाय थिरुवल्लुर
called the Bible of Tamil literature or Universal Veda. 1330 couplets organized in 133 chapters of 10 couplet each, covering three themes: Aram, virtue, dharma; Porul, wealth, poverty; and Inbam, love, pleasure. It is a secular ethical text and has been translated into nearly all major world languages. Then Naladiyar, ये एक जैन एथिकल वर्क है. देन सिला पदिकरम बाय इलांगो अदिगल, a Jain prince, brother of Chera king Chera Sengutuvan, one of the five great Tamil epics. Story of Kannagi and Kovalam in three Tamil kingdom, describe the cities of Puhar, Chola, Madurai, Pandya and Vanji Chera. The burning of Madurai by the Chaste Kannagi is the climax. Manimekalai by Sithalai Sathanar, sequel of Silla Padikram, story of Manimekalai, daughter of Kovalan and Madhvi, Buddhist in theme, promotes Buddhist philosophy. Together, Silla Padikram and Manimekalai are considered the twin epics. नेक्स्ट इज द थ्री संगम किंगडम्स. अब किंगडम्स की बात करें, जो तीन किंगडम थे. फर्स्ट इज चेरा डायनेस्टी. ये किस एरिया में थे? ये केरला वाले एरिया में थे और वेस्टर्न तमिलनाडु. इनकी कैपिटल थी वंजी, आइडेंटिफाइड विद करूर इन तमिलनाडु एंड तिरुवंचीकुलम इन केरला. और पोर्ट्स कौन कौन से लगते थे? एक थे मुचीरी, मॉडर्न कोंडुन, गलूर, Tondi. Mujiri was the most famous port for Roman trade in South India. The Periplus described it as the foremost emporium of Indian trade. So Roman trade, Romans तक ट्रेड यहाँ पे होता था. एम्बलम इनका क्या था? बो एंड एरो. बो एंड एरो इनका एम्बलम था. टाइटल वन्नावर, दोज ऑफ वंजी, जो वंजी के रहने वाले लोग हैं वन्नावर, इनको टाइटल दिया जाता था. Important Chera rulers. First is Uthyan Chera Lathan, earliest known Chera king, said to have provided food to both armies during Mahabharata war. His enemy Imaya Varman defeated him. उसके और ये कहा जाता था कि इन्होंने दोनों आर्मीज को फूड दिया था महाभारत में, कुरुज और पांड्याज को. और इसके जो एनिमी थे इमाया वर्धन, इन्होंने डिफेट कर दिया था इन्हें. Then Nedun Cheralthan fought the Chola king Karikala, captured Yavanna, Greek Romans and made them pour oil on their heads as punishment, showing Roman trade contacts. Then Cheran Sengutuvan, Red Chera, most famous Chera king. His brother Ilango Adigal wrote Silla Padikaram, carried a stone from Himalayas to Patini cult, worship of Kannagi. Fought northern kings, promoted Patini Kannagi cult, the only Sangam king connected with Silla Padikaram. Then Adukot Pattu Cherlathan, known for philanthropy, praised by the Sangam poets. नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो है चोला डायनेस्टी. चोला डायनेस्टी काफ़ी फेमस डायनेस्टी है और काफ़ी पावरफुल भी रही थी. द कावेरी डेल्टा रीजन. सो जो कावेरी डेल्टा रीजन है उस एरिया को ये चोला डायनेस्टी रूल करती थी. द सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, चोला मंडलम, कोरोमंडल रीजन. इसके जो कैपिटल थे वो थे उरायूर नियर मॉडर्न तिरुचिरापल्ली. पुहार कवेरी पट्टनम वाज द प्रिंसिपल पोर्ट सिटी एंड द सेकंड कैपिटल. पोर्ट्स जो थे पुहार, कवेरी पट्टिनम, मोस्ट इम्पोर्टेंट Cholapur described in Pattinapalai and Sillapadikam. It was thriving international trading center. इनका एम्बलम था टाइगर. टाइटल इनको दिए जाते थे किल्ली, वल्लावन एंड सेम्बियन. इंपॉर्टेंट चोला रूलर्स जो थे वो थे, फर्स्ट थे इलारा, कॉन्कर्ड श्रीलंका एंड रूल्ड फ्रॉम अनुराधपुरम फॉर 44 ईयर, नोन फॉर जस्टिस. मेंशन अनुराधपुरा श्रीलंका में है. Sinhalese Cornical Mahavamsa defeated by Sinhalese Prince Dutti Gamni. Next is Karikala, greatest Sangam Chola king. Name means man with the charred leg. Burned in a fire as child.
won the Battle of Veni against the Chera Pandyas and 11 minor chieftains, built Grand Anicut on the river Kaveri, one of the oldest water diversion structure in the world, developed Puhar Kaveri Pattinam, patron of agriculture, promoted embankment building along the Kaveri. Then Perunarkilli performed the Vedic Rajasuya sacrifice. Then Nalankilli and Nedunkilli fought each other in a civil war and weakened the Chola dynasty. नेक्स्ट जो थी वो थी पांड्यन डायनेस्टी। उसका रीजन क्या था? साउदर्न तमिलनाडु, दी बगाई रिवर वैली, मदुराई रीजन, कैपिटल मदुराई कोडल, पोर्ट कोरकल एंड सलैयूर। एम्बलम इनका था फिश। टाइटल इनको दिया जाता था मरन चेजियन वलुडी। स्पेशल फीचर पैटर्न्स ऑफ संगम असेंबलीज नोन फॉर पर्ल फिशरी, अर्लीस्ट Tamil dynasty to be mentioned in foreign accounts. Important Pandyan ruler Nedun Chegai I, Mudun Kudambi Peru Juthi, then Nedun Chegai II, then Ugra Peru Vajuthui. Megasthene and Pandyas. The Pandyas are the earliest Tamil dynasty to be mentioned by foreign Greek writers. Megasthene in his Indica mentions a Pandyan kingdom ruled by a daughter of Hercules and notes the land of Pandya with its pearl fishery. Kautilya's Arthashastra also mentioned Madurai pearl Pandyakvatta. The Pandyas were also mentioned in Pliny, Ptolemy and the author of the Periplus. And that's it for today's class. I hope you gained a lot of knowledge. Thank you. Take care. Goodbye.